Guys, am I audible? Yes, ma'am. So today we are going to see some of the simulation techniques. Okay. Now, why do we need the simulation technique? Is because we are going to learn the new topic known as automatic test pattern generation. Okay, in that automatic test pattern generation, before understanding the D algorithm, before understanding the bit scaling techniques, we first need to understand what do we mean by the simulation part. Okay, how many types of simulation are there, how many types of fault simulation are there, and then we can go from there to the uh, ATPG generation D algorithm part. Okay, then first of all we should know what do we mean by the test pattern generation. Then till now what we have done is we know some of the fault modules, we know how to detect the stuck at faults, what is the procedure to detect the stuck at faults, we'll apply fault equivalence, we'll apply fault collapsing, and then we'll do it, and then we will do it. Now the thing is that this procedure will be known as the test pattern generation. If we have the circuit is very large, then obviously we need to use the automatic test pattern generation. That means it will be applied, it won't be applied manually, it will be applied automatically. That means we can say that, just a second guys. Thank you. Times. So you can say that there is one kind of a machine. Okay, we feed the test patterns and we get the output. Now this can be manual or this can be automatic. ATPG means we are doing this procedure automatically. Now we know what the procedure is. Okay, procedure means how to select the test vectors. Okay, we know by fault modeling we know how to select the test vectors, but the thing is we need to properly follow some kind of a procedure. Okay, we cannot do it like this. So if we want to properly follow the procedure, that means we need to properly follow the algorithm. What is that algorithm? That algorithm is divided into fault sensitization, fault propagation, and justification. Now what do we mean by the fault sensitization? Okay, then let's say take a fuse example. Okay, let's say there is a fault present in the fuse. So if you turn on the switch and if there is a fault present, then we won't get the light. Okay, so that means we'll say that there is a problem in the fuse, like we need to replace the fuse. That means by turning it on, that is by switching it on, you are sensitizing that fault. Now how can we understand sensitization in VLSI part? Then let's say for this particular circuit we have this stuck at one fault over here. If you want to sensitize that fault, that means you will be giving stuck at you will be driving the value 0 over there by giving primary inputs. Primary inputs means whatever inputs we are giving from here, it is a primary input, output is primary output. So by giving some primary input we will be driving 0. Okay, why we will be driving 0? Because this is a stuck at one fault. So if we can drive the 0 part, if we can drive 0 over here, that means we have sensitized that particular fault. Okay, so we have to do the reverse procedure. So if I say that here the stuck at 0 fault is there and do the fault sensitization, that means you need to drive 1 over here. Okay, this is the procedure of the fault sensitization part. Now you the next step of the algorithm will be you have to propagate that fault. Why do I need to propagate that fault? Is because I don't have the controllability or observability over here. Okay, I don't know what kind of output will be generated or this on this wire, this wire, this wire. Only thing in my hand is this primary input and primary output. So the thing is, whatever fault is present over here, this fault should be propagated over here. Then and only then we will be knowing what kind of test vectors to give. Okay, so this is the next stage. The next stage is we need to do the fault propagation part, that from here to here the fault should be propagated. Now what do we mean by the fault is propagated? That means the effect of that fault.
Okay, that means that, for example, if the fault was not present over here, then what will be the effect? That means what will be the output of this wire and what will be the output of this wire? If this fault is present, then what will be the effect of this fault? The effect of this fault will be that it will be 1, even if we are driving 0. Then this 1 should be driving it over here. Okay, that means we are propagating our fault. The third step will be the justification. What do we mean by the justification? That means the determination of values at primary inputs so that false sensitization and fault propagations are successful. That means कि हम लोगों ने इस फॉल्ट को सेंसिटाइज कर दिया, 1 है तो 0 डाल दिया, इस 0 को मैंने यहाँ पर प्रोपोगेट कर दिया, ये वाला 0 यहाँ पर पहुंच गया, तो ये वाला 0 भी मैं, दिस इज अ प्राइमरी आउटपुट, सो इट विल बी जनरेटेड बाय दिस मशीन, मैं जनरेट नहीं कर रही हूँ. सो अगर मुझे इसको जनरेट करना है, दैट मीन्स मुझे क्या प्राइमरी इनपुट देने पड़ेंगे, तो मैं इसको जस्टिफाई कर सकती हूँ कि हाँ ये बराबर, ये वाला स्टेप बराबर है, ये वाला स्टेप बराबर है. देन सो द थर्ड स्टेप विल बी, for this particular case, step 1 and step 2, what should be my primary inputs? This will be my last step, which is known as justification step. Now based on that, we will be able to know कि okay, अगर मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, that means मुझे ये प्राइमरी इनपुट को देखना पड़ेगा यहाँ पर 0 ड्राइव करने के लिए. Why मैं यहाँ पर 0 ड्राइव कर रही हूँ? बिकॉज मैंने फॉल्ट को सेंसिटाइज किया है, स्टकेट 1 को सेंसिटाइज किया है, इसलिए मुझे यहाँ पर 0 ड्राइव करना है. तो ये मुझे पता चल गया. नाउ द थिंग इज, सिर्फ यही वाला मुझे प्रोपोगेट करना है, यही फॉल्ट की इफेक्ट प्रोपोगेट होनी चाहिए यहाँ पर. दैट मीन्स कि ये वाली प्रोपोगेट नहीं होनी चाहिए. तो दैट मीन्स कि यहाँ पर इन दोनों में मुझे 1 और 1 चाहिए. ये हम लोगों ने एग्जाम्पल में सीख लिया था क्यों 1 और 1 चाहिए. ओके, बट मैं बाय फॉलोइंग द एल्गोरिथम आई एम टेलिंग यू दी स्टेप्स कि ओके मुझे फॉल्ट प्रोपोगेट करना है तो ये वाला फॉल्ट प्रोपोगेट करना है, यहाँ पर फॉल्ट नहीं है तो ये वाला अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर 1 और 1 देना पड़ेगा. तो यहाँ पर 1 और 1 देने के लिए मुझे यहाँ पर सारे 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसा देना पड़ेगा. और यहाँ पर आइदर वन ऑफ द इनपुट शुड बी 0 0 1 1 1 1 चलेगा, 1 0 1 1 1 चलेगा, कुछ भी चलेगा, बस सिर्फ 1 1 1 1 1 1 नहीं चलेगा. सारे 1s नहीं चलेंगे, एक 0 होगा तो ये 0 मिल जाएगा. तो ऐसे मैं कर सकती हूँ. नाउ द थिंग इज, दैट इज द वे विच यू कैन डू कि अगर मैंने सारे 0s लिए हैं तो भी मुझे पता चल जाएगा कि देयर इज अ फॉल्ट प्रेजेंट और नॉट, दैट इज अ स्टकेट 1 प्रेजेंट और नॉट. नाउ द थिंग इज कि अगर हम लोगों को सारे टेस्ट पैटर्न जनरेशन के लिए ये सब कुछ स्टेप करने पड़ेंगे, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि चलो आप लोगों ने फॉल्ट इक्विवेलेंस कर लिया है, फॉल्ट कोलैप्सिंग कर लिया है, फिर उसके बाद आपको पता चला है कि देयर आर 33 फॉल्ट्स प्रेजेंट. तो 33 फॉल्ट्स के लिए आप लोग ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करोगे कि पहले सेंसिटाइज करोगे, फिर प्रोपोगेट करोगे, फिर जस्टिफाई करोगे. फॉल्ट नंबर 1 डन, फॉल्ट नंबर 2 सेंसिटाइज, जस्टिफाई, प्रोपोगेट. ओके, ये सब कुछ 33 टाइम्स करना पड़ेगा. तो आपको ऐसा लगेगा कि मैम ऐसे ही देख लेते हैं ना, कोई एक पैटर्न देते हैं, लाइक सारे 1 दे देते हैं और उस पे पता चल जाएगा कि कौन से फॉल्ट्स डिटेक्ट हो रहे हैं. अगर मोर देन 1 फॉल्ट डिटेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ओके. पर उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? उस मेथड को हम लोग बोलते हैं रैंडम पैटर्न टेस्ट जनरेशन. रैंडम पैटर्न टेस्ट जनरेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी एक रैंडमली पैटर्न ले लिया मैंने, मुझे ऐसा दिमाग में आया कि सारे 1 ले लेके देखते हैं हम लोग क्या होता है. मैंने फॉल्ट को सेंसिटाइज नहीं किया है, फॉल्ट को प्रोपोगेट नहीं किया है, फॉल्ट को जस्टिफाई नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, बस मेरे दिमाग में ये आया कि ये करना चाहिए तो मैंने कर दिया वो. ओके, दैट इज जनरेट अ रैंडम पैटर्न. अगर फिर नाउ द थिंग इज कि मेरी मशीन को तो इनपुट मिल गया है जो मिलना चाहिए. ओके, उसको वो मिल गया है. लाइक फॉर एग्जांपल इस मशीन को ये टेस्ट वेक्टर तो मिल गया है. दैट मीन्स उसके बेसिस पे वो कुछ आउटपुट तो जनरेट करेगा ही करेगा. ओके, आई नो कि वो लाइक हम लोगों के लिए ऐसा लगेगा कि सही है, गलत है, क्या है क्या नहीं, बिकॉज रैंडमली हम लोगों ने चुना है, बट फिर भी आउटपुट हम लोगों को मिलेगा. नाउ हम लोग जो भी फॉल्ट लिस्ट है हम लोगों के पास कि इसके बाद कि भाई 33 फॉल्ट्स आर प्रेजेंट. ओके, now out of that 33, how many faults are getting detected by this? Let's say 10 faults are getting detected.
ओके एक ही मैंने टेस्ट पैटर्न रैंडमली एक टेस्ट पैटर्न सिलेक्ट की और उससे मेरे 10 फॉल्ट्स डिटेक्ट हो रहे थे। दैट मीन्स कि अभी कितने बाकी रहे, अभी सिर्फ 22 फॉल्ट्स ही बाकी रह गए। ओके तो ये पहले अगर पहली वाली जो मेथड है फॉल्ट सेंसिटाइजेशन, फॉल्ट प्रोपोगेट और फॉल्ट जस्टिफाई, तो उसमें मेरे 10 फॉल्ट के लिए मुझे 10 बार वो करना पड़ता। ये 10 फॉल्ट के लिए मैंने एक ही रैंडमली टेस्ट पैटर्न जनरेट किया और मेरा हो गया। फिर 22 फॉल्ट्स के लिए अगेन मैंने कुछ टेस्ट पैटर्न जनरेशन किया होगा, उससे कितने फॉल्ट डिटेक्ट होते हैं मैं वो चेक करती हूँ। ओके सो सिमिलरली हम लोग ऐसे रैंडमली पैटर्न टेस्ट पैटर्न को डिटरमाइन कर सकते हैं और हम लोग डाल सकते हैं। तो इसको इस एल्गोरिथम को हम बोलते हैं रैंडम पैटर्न टेस्ट जनरेशन। देन द क्वेश्चन विल बी व्हिच वन इज बेटर मैन, लाइक हम लोगों को रैंडम पैटर्न टेस्ट जनरेशन करना चाहिए या फॉल्स सेंसिटाइजेशन वाला एल्गोरिथम फॉलो करना चाहिए। ओके देन द इश्यू विल बी ऑब्वियसली सब लोगों को यही लगेगा कि अगर मैम इफ दिस इज द केस तो फिर रैंडम पैटर्न टेस्ट जनरेशन कर लो और देख लो फॉल्ट लिस्ट सारे जब तक ना हो जाते तब तक हम लोग रैंडमली कोई अप्लाई करते जाएंगे और टेस्ट सेट बनाते जाएंगे। बट द थिंग इज दिस इज द केस कि एक बार ऐसा होगा कि आप लोगों का सैचुरेशन आ जाएगा। ओके लाइक इफ यू आर फॉलोइंग लेट्स से रैंडम टेस्ट पैटर्न जनरेशन, तो यहाँ पर आप लोगों का सैचुरेशन पॉइंट है। सैचुरेशन पॉइंट का क्या मतलब हुआ, लेट्स से मेरे 100 फॉल्ट्स प्रेजेंट है। ओके और मैंने TP1 अप्लाई किया, रैंडम टेस्ट पैटर्न जनरेशन, RTP1 अप्लाई किया, उससे 10 फॉल्ट्स डिटेक्ट हुए। ओके सो नाउ द थिंग इज फॉर योर RTP2 आप लोगों को सिर्फ 90 फॉल्ट्स के लिए चेक करना है, 100 फॉल्ट्स के लिए चेक नहीं करना है। तो रिमेनिंग 90 फॉल्ट्स के लिए आप लोग चेक कर रहे हो, उसमें से 20 फॉल्ट्स डिटेक्ट हो रहे हैं। ओके सो नाउ फॉर द रैंडम टेस्ट पैटर्न जनरेशन 3 यू जस्ट नीड टू चेक फॉर द रिमेनिंग 70 फॉल्ट्स। लेट्स से उसमें से भी आपके 30 फॉल्ट्स डिटेक्ट हो रहे हैं। ओके आप ऐसे करते जा रहे हो। अभी फॉर एग्जांपल 10 रैंडम टेस्ट पैटर्न जनरेशन के बाद ऐसा आया कि 10 फॉल्ट्स आर रिमेनिंग। ओके और अभी मैं जो भी अप्लाई कर रही हूँ ना मेरे फॉल्ट्स डिटेक्ट ही नहीं हो रहे। लाइक 10th पैटर्न अप्लाई किया, नो फॉल्ट डिटेक्टेड, 10 फॉल्ट आर रिमेनिंग। 11th पैटर्न मैंने अप्लाई किया, नो फॉल्ट डिटेक्टेड। 12th अप्लाई किया, नो फॉल्ट डिटेक्टेड। 13th अप्लाई किया, एक फॉल्ट डिटेक्ट हुआ। ओके फिर 14th नो, 15th नो, 16th नो, 20th में फिर से एक फॉल्ट डिटेक्ट हुआ। तो दिस इज समथिंग लाइक कि आप लोगों की एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही डिक्रीज हो रही है। तो हम लोग अभी इसमें क्या कर सकते हैं कि 90 फॉल्ट्स को हम लोगों ने रैंडम टेस्ट पैटर्न जनरेशन से डिटेक्ट कर लिया है। जैसे ही हम लोगों को पता चले कि 11, 12, 13 ऐसा आया, 10 पैटर्न जनरेशन में 90 फॉल्ट्स हो चुके हैं। नाउ 11 में कुछ नहीं हुआ, 12 में कुछ नहीं हुआ, 13 में सिर्फ एक फॉल्ट डिटेक्ट हुआ 10 में से। दैट मीन्स कि हम लोगों को पता चल गया कि सैचुरेशन आ गया है रैंडम टेस्ट पैटर्न जनरेशन का। तो अगर सैचुरेशन आ गया है तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, तो अभी रिमेनिंग 10 फॉल्ट्स के लिए हम लोगों को पता है कि कौन से 10 फॉल्ट बाकी हैं, लिस्ट ही बना रहे थे हम लोग और फॉल्ट लिस्ट पता था हम लोगों को कि भाई ये 10 फॉल्ट बाकी रह गए। तो वो 10 फॉल्ट के लिए हम लोग सेंसिटाइजेशन, प्रोपोगेशन और जस्टिफिकेशन वाले अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड अप्रोच कि इससे तो मुझे टेस्ट वेक्टर मिलेगा ही मिलेगा। इट इज नॉट समथिंग लाइक कि अनडिटेक्टेबल फॉल्ट्स होंगे। हाँ देयर विल बी सम फॉल्ट्स व्हिच आर अनडिटेक्टेड। ओके तो हम लोग उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे। जो भी 100 फॉल्ट्स है दे आर डिटेक्टेबल फॉल्ट्स, बट वो हम लोगों को टेस्ट पैटर्न देखना पड़ेगा उसका क्या होगा। तो उसमें जो 10 फॉल्ट के लिए है हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर हम लोग दोनों अप्लाई करें, दैट इज रैंडम टेस्ट पैटर्न जनरेशन अप्लाई करें और हम लोगों का सेंसिटाइजेशन एल्गोरिथम अप्लाई करें, तो हम लोगों को फॉल्ट कवरेज थोड़ा ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू सिर्फ रैंडमली अगर मैंने टेस्ट सेट डिजाइन कर लिया है और उससे फॉल्ट डिटेक्ट हो रहे हैं बहुत सारे, तो उससे मुझे फॉल्ट कवरेज कम मिलेगा इन कंपैरिजन टू इफ यू आर यूजिंग RTP plus SA. Now if you are using SA algorithm, okay, on and you have 33 faults और आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो 100% फॉल्ट कवरेज मिलने ही वाला है ये 33 फॉल्ट्स के लिए, बट उसमें टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। तो टाइम ज्यादा ना जाने की वजह से हम लोगों ने एक दूसरा एल्गोरिथम सोचा, दैट इज अ रैंडम टेस्ट पैटर्न जनरेशन। ओके सो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस।
सो इफ somebody asks that हम लोग कौन सी मेथड फॉलो करते हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लोग या तो लॉन्ग वे से जाए या तो शॉर्टकट से जाए. ओके, for the majority of the time we will be using random test pattern generation, but जैसे ही वो saturate हो जाता है, then we'll switch it to the sensitization algorithm. Okay, now so that means we can say that ये रिमेनिंग फॉल्ट्स में हम लोग ये वाले अप्लाई करने वाले. सो अगर हम लोग फॉल्ट सिमुलेशन क्यों बोलते हैं, फॉल्ट सिमुलेशन टेक्निक. ओके, फॉल्ट सिमुलेशन टेक्निक हम लोग इसीलिए बोलते हैं. सिमुलेशन का क्या मतलब होता है कि हम लोग कोई वर्चुअली कुछ अप्लाई कर रहे हैं. ओके, लाइक फिजिकली हार्ड कॉपी नहीं है मेरे पास, सॉफ्ट कॉपी है. ओके, सो दैट मीन्स बाय मीन्स ऑफ सम अनदर ऑल्टरनेटिव, let's say some kind of a computer program, we are checking the function of my circuit. Okay, so that means that is known as simulation. Now केस हम लोगों के पास क्या है, the case is कि मेरी जो चिप है right now, okay, like at this particular stage मेरी जो चिप है वो फैब्रिकेट नहीं हुई है. तो अगर मेरी चिप फैब्रिकेट नहीं हुई है, that means कि मैं चिप के ऊपर कुछ फंक्शनैलिटी टेस्ट नहीं कर सकती. ओके, फंक्शनैलिटी टेस्ट पॉसिबल नहीं है, बट मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं सर्किट सिमुलेशन कर सकती हूँ. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वाई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिकॉज इस चिप का मुझे वर्चुअल सर्किट डिजाइन या तो क्रिएट करना है. उसके लिए मुझे कंप्यूटर को एक प्रोग्राम लिखना है, और वो प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा. ओके, तो दैट मीन्स कि मैं सिमुलेशन टेक्निक अप्लाई कर सकती हूँ. तो सिमुलेशन टेक्निक भी VLSI के लिए कौन कौन सी है? ओके, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमुलेशन टेक्निक्स, सर्किट सिमुलेशन टेक्निक्स. पहली वाली है कंपाइल कोड. ओके, और दूसरी वाली है इवेंट ड्रिवन. इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे, और फिर हम लोग को पता चलेगा कि कौन सी हम लोगों को चूज करनी चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल कंपाइल कोड सिमुलेशन का क्या मतलब हुआ? तो कंपाइल कोड सिमुलेशन का ये मतलब हुआ कि कोई भी एक आपका जो चिप है, आपको उसका जो फंक्शन है, दैट मींस योर सर्किट डिस्क्रिप्शन है, वो आप लोग या तो सी लैंग्वेज में लिखते हो, या तो VHDL में लिखते हो, या तो वेरिलॉग में लिखते हो. फिर उसके इनपुट आउटपुट्स डिसाइड करते हो, फिर नेट और वेरिएबल्स असाइन करते हो, और उसके बेसिस पे आप लोगों को कोई एक आउटपुट मिलता है. ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ समथिंग, दिस इज अ सर्किट. ओके, और इस सर्किट के लिए अगर मैं किसी को सी प्रोग्राम लिखने को बोलूं, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने इन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 सो 7 वेरिएबल्स को डिफाइन किया होगा. तो इनपुट ले रहे होगे फ्रॉम द यूजर. ओके, फॉर एग्जांपल अगर लेना है और फिर आउटपुट डिटरमाइन करना है तो क्या कर सकते हो? फिर फंक्शनैलिटी के लिए स्टेटमेंट्स लिखोगे कि ये वाला जो आउटपुट है ये I1 और I2 का एंड करना है, ये वाला आउटपुट के लिए I3 और I4 का एंड करना है, और इस वाले आउटपुट के लिए OG1 और OG2 का एंड करना है, और फिर O पर जो अभी आउटपुट जनरेट हो रहा है उसको प्रिंट करना है. नाउ जस्ट इमेजिन कि कंपाइल कोड सिमुलेशन में क्या होगा. कंपाइल कोड के लिए आप लोगों ने एक ऐसा कोड लिखा है जो ऐसा कुछ फॉलो करता होगा. नाउ लेट्स से आई हैव अप्लाइड द पैटर्न 1 1 1 1. ओके, मैंने 1 1 पैटर्न अप्लाई किया है. इफ आई हैव अप्लाइड 1 1 1 पैटर्न, तो कोडिंग के हिसाब से यहाँ पर 1 जनरेट होगा, यहाँ पर 1 जनरेट होगा, और यहाँ पर 1 और 1 है, उसकी वजह से यहाँ पर 1 जनरेट हो रहा है और मुझे O इक्वल्स टू 1 ऐसा मिल रहा है. ओके, दैट इज माई आउटपुट इक्वल्स टू 1 ऐसा मिल रहा है. सो दैट मीन्स कि वो लाइक कंपाइलिंग कैसे हो रहा है? कंपाइलिंग में ऐसा हो रहा है कि हम लोग सबसे पहले बेस्ड ऑन माई वैल्यूज दिस स्टेटमेंट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, then this statement is getting executed, and then this statement is getting executed. Okay, line by line ये सब statement execute हो रहे हैं. वैसे मुझे O equals 1 ऐसा मिल रहा है. Now just imagine that मैं 1 1 1 अभी नहीं कर रही हूँ. Okay, now I am applying 0 1 1 1. अगर मुझे 0 1 1 1 अप्लाई करना है, that means अभी मैंने इनपुट चेंज कर दिया. ओके, यूजर इनपुट दे रहा था फ्रॉम द कीबोर्ड, पहले उसने 1 1 1 दिया, फिर उसने 0 1 1 1 दिया. तो अभी भी क्या होगा कंपाइल कोड सिमुलेशन में कि 0 एंड 1 होगा, फिर से 1 एंड 1 होगा,
इसका आउटपुट 1 आया, इसका आउटपुट 1 है और फिर 1 एंड 1 होगा, इसका आउटपुट 1 आया और फिर से वो आउटपुट इक्वल टू 1 ऐसा कुछ मुझे प्रिंट करके देगा। दैट मीन्स कि सीक्वेंशियली ये जाएगा, फिर से ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैंने सिर्फ यही इनपुट चेंज किया है। ओके, ये सारे वैल्यूज तो मैंने प्रीवियस वैल्यू की तरह ही रखे हैं। दैट मीन्स कि मुझे ये वाला कोड जो है वो कंपाइल करने की जरूरत ही नहीं है, बट कंपाइल कोड में ये वाला कोड भी कंपाइल होगा। दैट मीन्स इसके लिए टाइम इंक्रीज होगा। खामखा क्यों मैं टाइम इंक्रीज करूं? ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मुझे पता चले कि पहले ये था फिर ये है तो मुझे सिर्फ इतना ही जाना चाहिए। ओके, सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो भाई उसके लिए हम लोग दूसरे टाइप का सिमुलेशन, सर्किट सिमुलेशन टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। कोड सिमुलेशन टेक्निक इज वेरी सिंपल कि हम लोग एक कोड लिखेंगे और हर एक स्टेटमेंट हर बार एग्जीक्यूट होगा। इस इनपुट के लिए भी होगा, दूसरे इनपुट के लिए भी होगा, चौथे इनपुट के लिए भी होगा। जितने इनपुट दोगे उतनी बार ये कोड पूरा का पूरा रन होगा और आपको एंड में आउटपुट मिलेगा। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है? उसमें ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि काफी सारे स्टेटमेंट्स को कंपाइल करने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि अगर मैंने सबसे पहले 1111 दिया है और कुछ कंपाइल हो चुका है और अभी मैं 0111 दे रही हूं, तो ये वाला जो सेंटेंस है वो कंपाइल होना ही नहीं चाहिए, ये वाला होना चाहिए, फिर ये वाला होना चाहिए, तो मेरा टाइम बचेगा। तो ये इसकी जरूरत नहीं है, पर फिर भी हो रहा है। ये कंपाइल कोड में हो रहा है, कंपाइल कोड जो सर्किट सिमुलेशन टेक्निक है उसमें। नाउ लेट्स से अगर हम लोग सर्किट सिमुलेशन टेक्निक वो वाली यूज ना करें, ओके, और हम लोग इवेंट ड्रिवन सिमुलेशन चूज करें। इवेंट ड्रिवन सिमुलेशन का क्या मतलब होता है? इवेंट ड्रिवन सिमुलेशन मतलब कि फॉर एग्जांपल जो भी सिग्नल है, ओके, उस सिग्नल पे अगर चेंज डिटेक्ट होता है, ओके, दैट मीन्स 1 to 0 और 0 to 1, उसके बाद ही उसके रेलेवेंट जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। ओके, सो अगर ये होगा तो ही ये होगा, वरना ये नहीं होगा। ओके, बिकॉज इस इवेंट को ट्रिगर करने के हिसाब से दूसरे कई सारे इवेंट ट्रिगर हो सकते हैं। हम लोग जब एग्जीक्यूट करेंगे जो भी अगले सेंटेंसेस है उसको। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि इवेंट ड्रिवन एग्जांपल का क्या मतलब होता है? हम लोग सेम एग्जांपल ही लेंगे, आपको पता चलेगा कि थोड़े स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ओके, लेट्स से एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ओके, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 क्या हो रहा है? तो सबसे पहले मैंने 1111 अप्लाई किया था। नाउ आई एम अप्लाइंग 0111। दैट मीन्स दिस टाइम t इक्वल्स टू 0 पे सिग्नल चेंज डिटेक्ट हुआ है। ओके, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे सिग्नल चेंज डिटेक्ट हुआ है। नाउ अभी क्या करना है? द scheduled event is the scheduled event will be not 1 equals to 0, that means 1 से 0 हुआ। ओके, तो अभी वो जो 1 से 0 हुआ है उसके लिए दूसरी इवेंट कौन सी जिम्मेदार है? ओके, तो दैट मीन्स अगर इसकी वैल्यू चेंज हुई है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। इफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज चेंज्ड, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती इफ दिस वैल्यू इज चेंज्ड। ओके, सिर्फ इसकी वैल्यू ही चेंज होगी। दैट मीन्स कि हम लोग एक्टिविटी लिस्ट में सिर्फ यही वायर का नाम डालेंगे। ओके, तो यही वाला फिर से कंपाइल होने वाला है। इसके लिए जो भी नेसेसरी है स्टेटमेंट्स, वो हमारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। नाउ इतना हो चुका है। ओके, 01 का मुझे यहाँ पर 0 मिल गया है, ये कंपाइल हो चुका है। नाउ एट t इक्वल्स टू 1 क्या होगा? एट t इक्वल्स टू 1 मुझे पता चला कौन सा डिटेक्ट हुआ? बिकॉज ऑफ 1111 पहले OG1 पे 1 था, अभी 0 डिटेक्ट हुआ। ओके, दैट मीन्स फिर से मुझे सिग्नल चेंज का डिटेक्शन मिला है एट टाइम t इक्वल्स टू 1। एज दिस इज बीइंग scheduled और दिस इज बीइंग ट्रिगर्ड, इसकी वजह से कहां पर चेंजेस आ सकते हैं? अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो भाई ये वाला जो वायर है उस पे चेंज आ सकते हैं। दैट मीन्स मेरी एक्टिविटी लिस्ट में क्या जाएगा? सिर्फ O ही जाएगा। ओके, एंड देन एट टाइम t इक्वल्स टू 2 हम लोगों को एक आउटपुट मिलेगा जो डिफरेंट होगा इस वाले इनपुट से। ओके, 111 के लिए O इक्वल्स टू 1 था, एट टाइम t इक्वल्स टू 2 O इक्वल्स टू 0 मिल गया।
अभी चेंज क्या है आप लोग वो देखो, द चेंजेस कि ये वाला पार्ट कंपाइल नहीं हो रहा है, ये वाला पार्ट कंपाइल ही नहीं हो रहा है। क्यों कंपाइल नहीं हो रहा है? बिकॉज जब इवेंट ट्रिगर हुआ तब यही इवेंट ट्रिगर हुआ था, इसकी वजह से ये वाला इवेंट ट्रिगर हुआ, इसकी वजह से ये वाला इवेंट ट्रिगर हुआ। कोई भी ऐसा वायर नहीं है यहाँ पर कि जिससे ये वाला सेंटेंस अफेक्ट होता हो। ओके, सो हम लोगों ने जो कोड में देखा था कि ये भाई बिन जरूरी से कंपाइल हो रहा था, अभी वो कंपाइल होगा ही नहीं, सिर्फ इतना ही कंपाइल होगा और मुझे आउटपुट मिल जाएगा। फिर अगर इफ आई चेंज समथिंग एल्स तो फिर से जहां पर अफेक्टेड एरियाज हैं वही एक्टिविटी लिस्ट में आएंगे और हम लोग टाइम को ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। दैट इज द इवेंट ड्रिवन सिमुलेशन। सर्किट सिमुलेशन दो तरीके से होते हैं, या तो ऑल कोड को कंपाइल करो या तो सिलेक्टेड कोड को कंपाइल करो। ओके, अभी हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज एटीपीजी के लिए हम लोगों को फॉल्ट सिमुलेशन आना चाहिए और फॉल्ट सिमुलेशन के लिए हम लोगों को सर्किट सिमुलेशन आना चाहिए, इसलिए हम लोग ये सर्किट सिमुलेशन के पार्ट्स पढ़ रहे थे। अभी आपको पता चलेगा कि फॉल्ट सिमुलेशन क्या होता है, फॉल्ट सिमुलेशन करने के स्टेप्स क्या होते हैं और उसके स्टेप्स में हम लोग एज फास्ट हो इसीलिए हम लोग इवेंट ड्रिवन चूज करते हैं। तो इसकी वजह से हम लोगों को पता होना चाहिए कि देयर आर टू ऑप्शंस, बट इन VLSI वी आर सिलेक्टिंग इवेंट ड्रिवन सर्किट सिमुलेशन। नाउ सर्किट सिमुलेशन हो चुका है। फॉल्ट सर्किट सिमुलेशन का क्या मतलब होता है? सिंपल, फॉल्ट सर्किट सिमुलेशन का मतलब होता है वी आर इंट्रोड्यूसिंग द फॉल्ट्स। नाउ हम लोग फॉल्ट लिस्ट में से मेरे मशीन में हम लोग फॉल्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दैट इज फॉल्ट्स आर बीइंग इंसर्टेड। इफ द फॉल्ट इज प्रेजेंट और हम लोग ये टेस्ट पैटर्न अप्लाई करते हैं तो भाई ये वाला फॉल्ट डिटेक्ट होगा कि नहीं ये मुझे फॉल्ट सर्किट सिमुलेशन से पता चलेगा। ओके, फॉल्ट सर्किट सिमुलेशन। अब तक हार्ड कॉपी नहीं मिली है मुझे, सर्किट चिप फैब्रिकेट नहीं हुई है, ये सब कुछ मैं सिमुलेशन में कर रही हूँ। ओके, दिस ऑल ऑफ दिस थिंग इज हैपनिंग इन सिमुलेशन। ओके, जो भी कोई सॉफ्टवेयर है उसमें मैं ये सब कुछ प्लानिंग मेरा चल रहा है। मैंने टेस्ट पैटर्न दिया है, मैंने फॉल्ट इंसर्ट करके दिया है और आउटपुट में मुझे वो कितने फॉल्ट डिटेक्ट होगा वो मुझे मिल रहा है, बट ये सब कुछ कंप्यूटर में हो रहा है, सही में नहीं हो रहा है रियलिटी। सो दैट मीन्स कि फॉल्ट सर्किट सिमुलेशन और सर्किट सिमुलेशन में सिर्फ इतना ही चेंज है कि हम लोग नाउ अभी फॉल्ट इंसर्ट करने वाले हैं। अगर हम लोग फॉल्ट इंसर्ट करने वाले हैं दैट मीन्स हम लोगों को कुछ कंपैरिजन भी चाहिए होगा कि अगर नॉर्मल हो तब फॉल्ट तब आउटपुट क्या आ रहा है, अगर फॉल्ट इंसर्ट करने के बाद आउटपुट क्या आ रहा है, और अगर आउटपुट चेंज है तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला फॉल्ट डिटेक्ट होगा इस वाले टेस्ट पैटर्न से, वरना ये नहीं होगा। सो दिस इज समथिंग लाइक हम लोग फॉल्ट सर्किट सिमुलेशन में करते हैं। सब कुछ याद रखना है आपको इस स्टेप में कि पहले हम लोगों ने रैंडम टेस्ट पैटर्न जनरेशन देखा था और सेंसिटाइजेशन एल्गोरिथम देखा था, फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिमुलेशन देखे थे सर्किट सिमुलेशन, फिर हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट सर्किट सिमुलेशन। ओके, वो हम लोग कल देखेंगे, बट फॉल्ट सर्किट सिमुलेशन में ये सब कुछ काम आएगा हमारे लिए कि हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। इंडिविजुअली हमने ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, अभी हम लोग फॉल्ट सर्किट सिमुलेशन सीखेंगे। तो फॉल्ट सर्किट सिमुलेशन क्या होता है जनरली, लाइक सिमुलेटर के अंदर क्या होता है? तो हम लोग कोई भी एक रैंडम टेस्ट पैटर्न जनरेशन देता, रैंडमली टेस्ट पैटर्न अप्लाई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली मैंने एक टेस्ट पैटर्न को अप्लाई किया है। ओके, फॉल्ट को मैंने ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया है, जितने भी फॉल्ट थे फ्रॉम द फॉल्ट लिस्ट फॉल्ट्स हैव बीन इंसर्टेड। एक नॉर्मल सर्किट को मेरा ये टेस्ट पैटर्न जनरेशन जाएगा जिससे मुझे एक करेक्ट आउटपुट मिलेगा। ओके, नाउ जो जहां पर फॉल्ट अगर प्रेजेंट है दैट इज फॉल्ट नंबर 1 इज प्रेजेंट, दैट इज उसके लिए जो भी मैंने फॉर एग्जांपल सर्किट है जहां पर मैंने ऐसा लिखूंगी एक गेट के लिए यहाँ पर स्टक एट 1 प्रेजेंट है, तो ये वाली जो सर्किट है ये यहाँ पर है। ओके, फिर इस वायर पे स्टक एट 0 प्रेजेंट है, तो ये वाली सर्किट यहाँ पर है। ओके, तो इसको भी ये टेस्ट पैटर्न जनरेशन मिलने वाला है। ये सर्किट भी सर्किट सिमुलेशन से कंपाइल होने वाली है। ओके,
फिर उसका कोई आउटपुट जनरेट होने वाला है, फिर अगर इन दोनों के कंपैरिजन होगा, इफ इट इज मैच देन fault not detected, if it is mismatch then this fault will get detected by this test pattern, ऐसा कुछ होगा। so that means क्या होने वाला है, हम लोग एक पैटर्न अप्लाई करेंगे, फिर उसके लिए हम लोग फॉल्ट 1 का देखेंगे कि हुआ कि नहीं, फिर हम लोग इस वाले जब मुझे मिल गया कि ये फॉल्ट होगा कि नहीं, यस और नो, ओके आई जस्ट नीड यस और नो, यस डिटेक्टेड, नो नॉट डिटेक्टेड। जैसे ही मुझे ये मिल जाता है आंसर, मेरा सिमुलेशन क्या करेगा, फॉल्ट 2 पे जाएगा, फॉल्ट 2 वाली सर्किट पे, उसका सर्किट सिमुलेशन करेगा, फिर इससे मुझे यस और नो मिलेगा। सो दिस इज समथिंग लाइक कि सीरियली में एक एक फॉल्ट को स्टेप्स कर रही हूँ, ओके, दिस इज नोन एज माय सीरियल फॉल्ट सिमुलेशन, ओके। इसमें भी हम लोग टाइप्स ऑफ सर्किट सिमुलेशन में इवेंट ड्रिवन सिमुलेशन करने ही वाले, बट ये हम लोगों के ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज सीरियल फॉल्ट सिमुलेशन हम लोग कर रहे हैं। तो अगर हम लोग सीरियल फॉल्ट सिमुलेशन कर रहे हैं तो बात क्या रहेगी, ओके, तो बात ये रहेगी कि पहला वाला स्टेप होगा कि रैंडम टेस्ट पैटर्न अप्लाई किया, वो नॉर्मल सर्किट में गया, फिर उसके बाद सर्किट विथ फॉल्ट 1 में गया और सर्किट सिमुलेशन हुआ, उसके बाद सर्किट विथ फॉल्ट 2 में गया और सर्किट सिमुलेशन हुआ, उसके बाद सर्किट विथ फॉल्ट 3 में गया, सर्किट सिमुलेशन हुआ। जितने मेरे फॉल्ट से 33, 35 जितने भी आफ्टर फॉल्ट कोलैप्सिंग जितने भी फॉल्ट से, उसके ऐसे सीरियली मुझे सिमुलेशन मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। यस और नो मींस फॉल्ट इज गेटिंग डिटेक्टेड और नॉट, ओके। तो ऐसा कुछ होगा। अभी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मुझे टाइम बचाना है, तो अगर इसमें टाइम बचाना है, तो अगर सारे कंपाइल कोड से करेंगे तो हर बार सब कुछ होने वाला है, तो दैट मीन्स टाइम बहुत ही इंक्रीज होगा इस सिम्युलेटेड का, सिम्युलेटर का टाइम बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। बट हर एक बोर्ड पे, दैट इज ये जो बोर्ड है उसके लिए हम लोग इवेंट ड्रिवन सर्किट सिमुलेशन करें, इसके लिए भी इवेंट ड्रिवन सर्किट सिमुलेशन करें, इसके लिए भी इवेंट ड्रिवन सर्किट सिमुलेशन करें, तो हम लोगों का टोटल सिमुलेशन टाइम है जो बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि सर्किट सिमुलेशन कितने टाइप्स के होते हैं और मुझे कैसे टाइप का सर्किट सिमुलेशन फॉल्ट सर्किट सिमुलेशन में कराना चाहिए। इसकी वजह से हम लोगों ने ये दोनों पॉइंट डिस्कस किए थे। नाउ लेट्स से मैम पता चल गया कि सीरियल फॉल्ट सिमुलेशन में हम लोग इवेंट ड्रिवन सर्किट सिमुलेशन करेंगे और हम लोगों का टाइम डिक्रीज होगा, ओके। तो ये हम लोगों को पता चल गया, बट मैम होगा कैसे, ओके, तो होगा कैसे, दैट मीन्स कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देन लेट्स से कि पहली बार जो है ना, पहली बार यहां पर स्टक एट 1 प्रेजेंट है, ओके, स्टक एट 1 फॉल्ट इज प्रेजेंट, यहां पर कोई एक फॉल्ट प्रेजेंट है और मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज रैंडम कोई एक टेस्ट पैटर्न जनरेशन है वो मैं ले रही हूं, okay, that should be my first step. Now as there are two inputs, okay, if there are two inputs that means कि मुझे कोई दो इनपुट में मुझे कुछ करना पड़ेगा, okay. So for example let's say if I am selecting 1 or 1, okay, if I am selecting 1 or 1 तो क्या होने वाला है हम लोग वो देखेंगे, okay. अगर फॉल्ट वहां पर प्रेजेंट है तो भाई क्या होने वाला है हम लोग वो देखेंगे। लेट्स से स्टक एट 0 प्रेजेंट है, ओके, 1 और 1 के लिए वो इजी रह जाएगा। लेट्स से स्टक एट 0 प्रेजेंट है तो क्या होगा, ओके। देन लेट्स से इफ द स्टक एट 0 इज प्रेजेंट ओवर हियर, फर्स्ट रैंडम टेस्ट पैटर्न जनरेशन मुझे देना है और मैं दे रही हूँ 1 और 1, ओके, 1 1 में यहाँ पर अप्लाई कर दिया है मैंने, 1 1 अप्लाई कर दिया। चलो, तो अगर मैंने 1 1 अप्लाई कर दिया तो अभी क्या हुआ मुझे वो देखना है, ओके। और उसमें मैं इवेंट ड्रिवन सिमुलेशन कैसे कर सकती हूँ, मुझे वो अप्लाई करना है, ओके। तो अगर मैं वो अप्लाई करती हूँ तो उसके बाद मुझे पता चलेगा कि हम लोग कैसे करने वाले, कि इवेंट स्केड्यूल्ड इवेंट क्या रहेगा, और स्केड्यूल्ड इवेंट की वजह से मुझे कहाँ पर एक्टिविटी लिस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा बेस्ड ऑन माय फॉल्ट, ओके। सो एज द फॉल्ट की जो लोकेशन है वो मायने रखती है मेरे इवेंट ड्रिवन सिमुलेशन के लिए, okay. Let's say the fault is present over here, that is stuck at 0 and I'm applying 1 and 1,
सो इफ इवेंट ड्रिवन सिमुलेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि सिग्नल की वैल्यू चेंज होती है, वैसे ही हम लोगों को पता चलेगा कि इसको कंपाइल करना है और इसको कंपाइल नहीं करना है। यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग ये वाला पार्ट देखेंगे कि ओ द फॉल्ट इज प्रेजेंट ओवर हियर, दैट मीन्स सिमुलेटर यहाँ पर कोई एक फॉल्ट है उसके लिए कुछ चेक कर रहा है। तो इफ द फॉल्ट इज प्रेजेंट ओवर हियर, तो एक्टिविटी लिस्ट में क्या आएगा उसके बेसिस पे हम लोग जाएंगे। ओके, लेट्स से टाइम t इक्वल्स टू 0, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 के लिए हम लोगों ने i1 इक्वल्स टू 1 और i2 इक्वल्स टू 1 को अप्लाई किया। द schedule event is what? Schedule event is my stuck at 0 present at i2. Okay, that is my scheduled event. That is i2 g1 पे मेरा फॉल्ट एक प्रेजेंट है। अभी इसकी वजह से कहाँ कहाँ चेंज होने वाला है, ओके इसकी वजह से कहाँ कहाँ चेंज होने वाला है, वो सारे पॉइंट को मुझे एक्टिविटी लिस्ट में ध्यान में रखना है। ओके, सो नाउ कौन कौन से आने वाले हैं। ओके, देन एज दिस इज, यहाँ पर हम लोगों को याद था कि अगर ब्रांच हो रही है दैट मीन्स फैन आउट मिल रहा है, दैट मीन्स वो सारे के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। सो i2 में अगर फॉल्ट है दैट मीन्स i2 g1 भी आएगा कंपाइलेशन के टाइम, i2 g2 भी आएगा, दैट मीन्स ये वाली ब्रांच भी आएगी और ये वाली ब्रांच भी आएगी, ये दोनों ब्रांच आएगी। और एज दिस फॉल्ट इज प्रेजेंट ओवर हियर, दैट मीन्स कि मैं og1 भी लूंगी। एज दिस फॉल्ट इज प्रेजेंट ओवर हियर, दैट मीन्स ये वाला पार्ट भी आएगा। ओके, सो हम लोग तीन कोई एक वायर है जो एक्टिविटी लिस्ट में रखने वाले हैं। सो तब वो वाले जो सेंटेंस है वो वाले एग्जीक्यूशन में मुझे मिलेंगे। ओके, सो दैट मीन्स मुझे कोई OG1 मिलेगा, I2 G1 मिलेगा और I2 G3 मिलेगा। ये तीन मुझे टाइम t इक्वल्स टू 0 पे मिलेंगे। अभी होगा क्या, एज दिस इज 0 और मैं 1 दे रही हूं, दैट मीन्स कि I2 G1 पे मुझे सिग्नल चेंज मिलेगा, I2 G1 और I2 G2 पे। एज मुझे I2 G1 और I2 G2 पे सिग्नल चेंज मिला, उसकी वजह से मुझे OG1 और OG2 पे सिग्नल चेंज मिलेगा। सो एक्टिविटी लिस्ट में जाएंगे OG1 एंड OG2। नाउ नेक्स्ट स्टेप के लिए OG1 और OG2 में सिग्नल चेंज मिला, इसकी वजह से मुझे O1 पे और O2 पे चेंज मिलेगा। If you are not following what am I talking about, then let's say at time t equals to 1 क्या होगा। ओके, let's say I'm driving 1 and 1, तो यहाँ पर 1 मिलना चाहिए बट मुझे मिलेगा 0 और 0। यहाँ पर तो 1 मिलेगा पर यहाँ पर 0 और 0 मिला। सो दैट मीन्स scheduled event is कि सिग्नल चेंज मिला मुझे। कहाँ पर सिग्नल चेंज मिला, I2 G1 पे और I2 G2 पे। एज मुझे वहां पर चेंज मिला तो उसका अफेक्ट मुझे कहाँ पर देखने को मिलेगा, OG1 और OG2 में। तो मेरी एक्टिविटी लिस्ट में आएंगे OG1 और OG2। दैट मीन्स कि जो जहां पर भी स्टेटमेंट्स में OG1 OG2 लिखा है वो वाले स्टेटमेंट्स फिर से एग्जीक्यूट होंगे। नाउ एज दिस इज 0 0, अगर 1 1 होता तो क्या होता, अगर ये 1 1 होता तो यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 1 होता, ये 1 होता तो यहाँ पर 0 होता, तो दिस मीन्स यहाँ पर 0 होता, यहाँ पर 1 होता। बट एज दिस इज प्रोपोगेटिंग 0, तो यहाँ पर मुझे 1 मिल रहा है। एज दिस इज प्रोपोगेटिंग 0, यहाँ पर मुझे 0 मिल रहा है। तो ये वाला पार्ट तो 0 ही हो रहा है बट ये वाला पार्ट मुझे 0 मिल रहा है। सो दिस मीन्स दैट OG1 और OG2 वाले सेंटेंस फिर से कंपाइल होने वाले। फिर टाइम t इक्वल्स टू 2 पे क्या होगा, एज OG1 एंड OG2 चेंज्ड, सो O1 और O2 भी चेंज होगा। तो एक्टिविटी लिस्ट में O1 और O2 जाएगा और O1 और O2 क्या जनरेट हो रहा है फिर मुझे वो देगा। सो इन द एंड t टाइम इक्वल्स टू 3, मुझे O2 की वैल्यू कोई चेंज वैल्यू मिलेगी, मिलनी चाहिए 1, मिली मुझे 0। दैट मीन्स यस दिस फॉल्ट विल गेट डिटेक्टेड बाय दिस टेस्ट पैटर्न जनरेशन, ऐसा मुझे आउटपुट में मिलेगा। ओके, सो ऐसे मैं फॉल्ट सर्किट सिमुलेशन करने वाली हूँ। नाउ दूसरे टाइम पे क्या होगा, ओके दूसरे टाइम पे मैं दूसरा वाला फॉल्ट लूंगी। ओके, लेट्स से मैंने कोई एक फॉल्ट लिया है कहीं और, अभी मैंने इस जगह पर फॉल्ट लिया था और मैंने इवेंट ड्रिवन सर्किट सिमुलेशन कराया और मुझे आउटपुट मिला वेदर दिस फॉल्ट इज गेटिंग डिटेक्टेड और नॉट। ओके, सिमुलेशन में कंप्यूटर प्रोग्राम मैंने लिखा था, उसमें मैंने कंपाइल कोड नहीं किया, इवेंट ड्रिवन किया, तो ऐसे मुझे कुछ एक वाला पॉइंट मिल गया। नाउ लेट्स से मैंने यहां पर लिया है। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ यहां पर ही फॉल्ट प्रेजेंट हो सकता है।
यहाँ पर भी कोई एक फॉल्ट प्रेजेंट हो सकता है। अगर यहाँ पर फॉल्ट प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक तब उस टाइम पे क्या होने वाला है, हम लोग वो चेक करेंगे। ओके, सो अगर हम लोग वो चेक कर रहे हैं तो फिर से हम लोगों को एक एक्टिविटी लिस्ट बनाना पड़ेगा। ओके, उसके लिए भी मैंने सेम टेस्ट पैटर्न रखी है गाइस, हम लोगों को ये याद रखना है। टेस्ट पैटर्न कोई एक डिसाइड हो चुकी है, दैट इज 1-1। उसके बाद नॉर्मल सर्किट सिमुलेशन होगा, फॉल्ट 1 सर्किट सिमुलेशन होगा, ये फॉल्ट 2 सर्किट सिमुलेशन होगा। उसके लिए ये सब कुछ डिसाइडेड ही रहेगा। सो 1-1 मैंने दिया है। नॉर्मल सर्किट का क्या होता है, 1-1 अगर दिया है तो यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 1। okay, this is something like normal. Now if this thing is, let's say, stuck at 0, okay, if this thing is stuck at 0 तो क्या होगा, तो हम लोगों को पता है क्या होने वाला है कि भाई यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर 1 आ गया इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, बट यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसा कुछ होने वाला है, ये हम लोगों को पता है। बट इवेंट ड्रिवन सिमुलेशन से हम लोग चेक करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि कितने हम लोगों को एक्टिविटी लिस्ट बनाने पड़ेंगे और कैसे मैं जाऊंगी। ओके, देन सबसे पहले मैंने 1-1 दिया है, तो 1-1 दिया है तो एक्टिविटी लिस्ट में कौन सा चेंज होगा, दैट मीन्स कि I2G1 है, I2G2 है और OG1 है, वो चेंज हो सकता है, मुझे वो पता चल गया। चलो, मैंने उसका एक्टिविटी लिस्ट बना दिया। नाउ द थिंग इज, there is some fault is present at somewhere. Okay, if the fault is present, where, we'll check. Let's say this fault is present over here. Now this fault is present over here, तो उसकी वजह से प्रोपोगेशन के टाइम क्या होगा। ओके, नेक्स्ट टाइम जैसे एक्टिविटी लिस्ट में हो गया, मैंने I2G1 चेक कर लिया, I2G2 ले लिया और OG1 ले लिया, मैंने ये सब कुछ कर लिया है। ओके, और OG1 ले लिया है, OG2 ले लिया, ये सब कुछ कर लिया है। नाउ मुझे पता चला सिग्नल चेंज 1 से 0, ये I2G2 पे प्रेजेंट है, I2G2 पे प्रेजेंट है। तो ये वाला जो पॉइंट है सिर्फ वही होगा। एट टाइम t इक्वल्स टू 1 मैं लिखूंगी OG2 एक्टिविटी लिस्ट में, तो सिर्फ वही वो होने वाला है, वो वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है। मैम, टाइम t इक्वल्स टू 2, यस मैम, यू आर नॉट शेयरिंग योर स्क्रीन। आई एम नॉट शेयरिंग माय स्क्रीन। यस, कब से मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था? जस्ट अ मोमेंट अगो। ओके, ओ हाँ, देन इट्स फाइन, देन इट्स ओके। हाँ, तो मैंने क्या बोला, पहले हम लोगों ने यहाँ पर फॉल्ट देखा था। ओके, फॉल्ट नंबर 2 इज प्रेजेंट ओवर हियर, लेट्स से। तो हम लोग एक्टिविटी लिस्ट बना रहे हैं। तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ओके, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 1-1 मैंने अप्लाई किया है स्केड्यूल इवेंट में। तो कौन से एक्टिविटी लिस्ट मुझे चेक करने पड़ेगी, तो मैं ये चेक करूंगी, मैं ये चेक करूंगी, मैं ये वाला चेक करूंगी। ओके, इतने मैं चेक करूंगी। उसके बाद मुझे पता चलेगा कि कहीं पर फॉल्ट डिटेक्ट हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर फॉल्ट डिटेक्ट हुआ है। सो स्केड्यूल इवेंट विल बी I2G2 पे सिग्नल चेंज हुआ है। एज उस पे सिग्नल चेंज हुआ है तो कौन से अफेक्ट होंगे, सिर्फ वही एक्टिविटी लिस्ट में आएंगे, दैट मीन्स OG2 विल गेट अफेक्टेड। तो सिर्फ वही एक्टिविटी लिस्ट में आएगा और वही सेंटेंस एग्जीक्यूट होगा कंपाइल करते टाइम। ये टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हुआ, ये टाइम t इक्वल्स टू 1 पे हुआ, ये टाइम t इक्वल्स टू 2 पे होगा। अब ओके, सो OG2 में मुझे कुछ सिग्नल चेंज मिलेगा बिकॉज 0 से 1 होना चाहिए, बट रियलिटी में 1 से 0 हो रहा है, दैट मीन्स मुझे कुछ चेंज मिलेगा। एज फिर से मुझे कुछ चेंज मिला, दैट मीन्स ये सिग्नल चेंज हुआ, तो उसकी वजह से कहाँ पर चेंज होने वाला है, दैट मीन्स कि O2 पे चेंज होने वाला है। तो सिर्फ O2 के ही जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो दैट मीन्स एट t इक्वल्स टू 3 O2 पे मुझे यस और नो मिल जाएगा, जो भी अगर इफ इट इज अ डिफरेंट मिसमैच हुआ है देन फॉल्ट इज डिटेक्टेड, इफ इट इज नॉट गेटिंग डिटेक्टेड देन द फॉल्ट इज नॉट गेटिंग डिटेक्टेड, ऐसा होगा। नाउ थर्ड टाइम क्या होगा, ओके, थर्ड टाइम मतलब थर्ड फॉल्ट हम लोगों को देखना है कि तीसरा भी फॉल्ट हो सकता है।
अभी तीसरा फॉल्ट लेट्स से कहाँ पर प्रेजेंट है, हम लोग ओके OG2 पे लेते हैं. ओके फॉर एग्जांपल OG2 पे कोई एक फॉल्ट प्रेजेंट है एंड टेस्ट पैटर्न इज व्हाट 1-1, वो तो मैंने 1-1 ही रखी है. तो फिर से मुझे इवेंट ड्रिवन सिमुलेशन करना पड़ेगा उसके लिए. तो सबसे पहला t=0 स्टेप तो सब लोगों के ये सेम ही रहता है कि मैंने भाई t=0 पे 1-1 पैटर्न अप्लाई किया है. और हम लोग देखेंगे I2G1 देखेंगे, I2G2 देखेंगे और OG1 देखेंगे. वो तो सिंपल सी बात है, हम लोग वो देख लिया. एट t=1 मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है. ओके यहाँ पर अभी तक फॉल्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, फॉल्ट भाई यहाँ पर प्रेजेंट है. ओके दैट्स वाई ऐसा होगा कि शायद कुछ एक्स्ट्रा स्टेप होगा. फॉल्ट तो यहाँ पर प्रेजेंट है. एट t=1 कुछ भी सेम आई मीन सब कुछ सही ही जा रहा है. ओके लाइक कुछ भी सिग्नल चेंज डिटेक्ट नहीं हुआ है. तो सिंपल सी मैं जो भी जैसे हम लोग सिंपल जाते हैं वैसे ही एट t=1 पे I2G1 पे 1 मिलेगा, I2G2 पे 1 मिलेगा. ओके और मुझे OG1 और OG2 देखना है. OG1 और OG2 सेम मिलेगा मुझे 1 और नहीं, मुझे एक्टिविटी लिस्ट में OG1 और OG2 देखना पड़ेगा. एट टाइम t=2 इस फॉल्ट की वजह से मुझे पता चला कि OG2 पे सिग्नल चेंज हुआ है. ओके सो एज OG2 पे सिग्नल चेंज हुआ है दैट मीन्स मुझे पता चलेगा कि अभी मुझे एक्टिविटी लिस्ट में कौन सा डालना है, O1 की वैल्यू डालनी है. ओके सो एट टाइम t=3 मैं क्या करूंगी, बेस्ड ऑन दैट O1 की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है मैं वो देखने वाली हूँ. ओके सो इन दिस वे वी आर यू कैन से दैट हम लोग इवेंट ड्रिवन सर्किट सिमुलेशन फॉल्ट को अप्लाई करके हम ये करने वाले हैं. अभी प्रॉब्लम लाइक एक एक्स्ट्रा स्टेप मैंने बोला था कि हम लोगों को करना पड़ेगा. वो एक्स्ट्रा स्टेप कौन सा है, वो जो एक्स्ट्रा स्टेप है कि हम लोग OG1 डिटेक्ट करेंगे और OG2 डिटेक्ट करेंगे एट टाइम t=2. ओके तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई डिटेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है. दैट मीन्स कि लेट मी टेल यू व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट. ओके लाइक t=0 पे I2G1 होगा, I2G2 होगा और OG1 होगा. फिर एट टाइम t=1 पे हम लोग OG1 और OG2 करने वाले हैं. ओके फिर एट टाइम t=2 हम लोग OG1 और OG2 पे देखेंगे कि भाई कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हाउ टू एक्सप्लेन, लाइक यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा, मैं आपको कैसे समझाऊं कि स्केड्यूल इवेंट में मुझे पता चलेगा कि कोई एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा. ओके लेट्स से डिटेल में अगर शायद अच्छा रहेगा, आप लोग समझ पाओगे. लेट मी जस्ट क्रिएट वन टेबल तो अच्छा रहेगा मेरे लिए और आपके लिए भी. यहाँ पर मैं टाइम लिखती हूँ, यहाँ पर मैं इवेंट लिखती हूँ और यहाँ पर मैं एक्टिविटी लिस्ट लिखती हूँ. ओके एट टाइम t=0 द scheduled event is I1=1 और I2=1 और एक्टिविटी लिस्ट में आएंगे I2G1, I2G2 और OG1. नाउ एट टाइम t=1 मेरा स्केड्यूल इवेंट कौन सा होने वाला है, I2G1 के क्या वैल्यू है और I2G2 की क्या वैल्यू है. ओके लेट्स से 1 और 1. इफ इट इज 1 and 1 और फिर हम लोग उसकी वजह से OG1 और OG2 देखेंगे. एट टाइम t=2 हम लोगों का OG1 और OG2 हम लोग देखेंगे. ओके और OG1 और OG2 के लिए हम लोग OG1 और OG2 दोनों देखा है, दैट मीन्स हम लोग O1 देखेंगे, O2 देखेंगे और OG1 का जो ये वायर है. ओके लेट्स से I1G3 हम लोग वो देखने वाले. नाउ एट टाइम t=3 हम लोग क्या देखेंगे. ओके एट टाइम t=3 हम लोग
बिकॉज ऑफ दिस एरर ये सिग्नल चेंज हुआ है, इसीलिए हम लोगों को O2 इक्वल्स टू 1 मिला और I1G3 इक्वल्स टू 1 मिला, जो 1 1 मिलना नहीं चाहिए, 1 0 मिलना चाहिए। इसकी वजह से मेरा जो O1 वाला पार्ट है वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स एट t इक्वल्स टू 4 मुझे O1 इक्वल्स टू 0 मिलेगा, जो मुझे मिलना चाहिए 1, सॉरी 1 मिलेगा, जो मुझे मिलना चाहिए 0। तो ये जो है दैट मीन्स मुझे t इक्वल्स टू 4 पे पता चलेगा फॉल्ट इज गेटिंग डिटेक्टेड और नॉट। ओके, जो हम लोगों ने जो भी देखा दैट मीन्स फोर्थ स्टेप पे, ओके, t इक्वल्स टू 3 फोर्थ स्टेप पे मुझे पता चला, हम लोगों ने जो भी देखा था वहां पर मुझे थर्ड स्टेप में ही पता चल जाता था कि भाई फॉल्ट डिटेक्ट होगा कि नहीं होगा। ओके, सो दैट मीन्स इवन दो वी आर डूइंग द इवेंट ड्रिवन सिमुलेशन, the location of the fault also matters to find the circuit simulation total fault circuit simulation time find करने के लिए। ओके, अगर फॉल्ट भाई यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है, तो जो फॉल्ट यहाँ पर प्रेजेंट है उसकी वजह से टाइम कम लेगा। ओके, और अगर फॉल्ट यहाँ पर प्रेजेंट है तो मेरा सिमुलेशन का टाइम ज्यादा हो जाएगा। इवन दो वी आर यूजिंग द सेम मेथड दैट इज इवेंट ड्रिवन सिमुलेशन, पर इन दोनों की वजह से हम लोगों का जो टाइम है वो टाइम थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, बट ओवरऑल हम लोग टाइम डिक्रीज कर रहे हैं बाय फॉलोइंग दिस इवेंट ड्रिवन सिमुलेशन मेथड, कि भाई सिर्फ वही स्टेटमेंट को हम लोग कंपाइल करा रहे हैं, तो इससे हम लोगों का थोड़ा टाइम बच जाएगा। इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी सी इज वी विल सी द पैरेलल फॉल्ट सिमुलेशन मेथड। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, एक टेस्ट पैटर्न होगा और एक के बाद एक हम लोग फॉल्ट को चेक करते हैं और उसका सिमुलेशन निकालते हैं और उससे मुझे आउटपुट मिलता है वेदर इट विल गेट डिटेक्टेड और नॉट। In the same way, the second method of fault circuit simulation is the parallel fault circuit simulation. पर हम लोग parallelly जा रहे हैं तो होगा। ओके, हम लोग that will see in the next class, और उसकी वजह से फिर हम लोगों को पता चलेगा कि ओ ओके किसको हम लोग कंट्रोलेबिलिटी बोलेंगे, किसको हम लोग ऑब्जर्वेबिलिटी बोलेंगे, किसको हम लोग मेजर्स बोलेंगे, दैट इज आपका जो SCOAP स्कोप आता है वो बोलेंगे, और फिर सच में इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा आपका ATPG का, और उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए डी एल्गोरिथम देखेंगे और फिर सीक्वेंशियल सर्किट के लिए पिस्ट स्कैनिंग और वो सब कुछ देखेंगे। ओके, सो ये अगर आपको पता होगा तो लाइक सच में क्या हो रहा है, टाइम ज्यादा क्यों जा रहा है, टाइम कम क्यों जा रहा है, वो आपको पता रहेगा। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स देन you can give your attendance and then you can do. Okay, Ma'am. Yes. Hello. Ma'am, can you share all the activities for our upcoming test? Upcoming test? मैं इसमें से कुछ नहीं पूछने वाली हूँ। Not this PPT. Okay, then. Oh, yes. System Verilog के लिए जानना है ना आपको? Okay. मुझे लगा कि आप लोग कहीं और से सीख रहे हो तो मैंने अपलोड नहीं किया। Oh yes, I'll upload. Don't worry. मेरी PPT में अपलोड कर दूंगी। Okay, ma'am. Okay. और मैं वो लिंक भी भेज दूंगी if you want that particular thing. Okay, ma'am. So there are in total 3 PPTs. Okay, मैं तो सारी PPT अपलोड कर दूंगी आपकी मिड सेम के लिए, जो इंट्रोडक्शन टू सिस्टम वेरिलॉग 1, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम वेरिलॉग 2 एंड इंट्रोडक्शन टू सिस्टम वेरिलॉग टेस्ट बेंच कंपोनेंट्स। ये जो 3 PPT है ना, ये 3 PPT इंपॉर्टेंट है, सो यू शुड गो थ्रू इट। ओके, सो सिस्टम वेरिलॉग पार्ट 1 में हम लोगों ने जो देखा था वो था कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वाई सिस्टम वेरिलॉग, फिर हम लोगों ने नेट और वेरिएबल का डिफरेंस देखा था। इन द इंट्रोडक्शन टू सिस्टम वेरिलॉग पार्ट 2 हम लोगों ने सब कुछ देखा था, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, फिर उसमें सारी डेटा टाइप्स, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर यूनियन क्यू ऐसा सब कुछ सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने व्हाट इज द ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द लाइक ड्राइवर क्या काम करेगा, मेल बॉक्स क्या काम करेगा, फिर ये सब कुछ हम लोगों ने देखा था। तो ये सारी PPT है, उसमें से मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ओके, सो रिफर दैट। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है देन जस्ट मैसेज कर देना कि कौन सा पहला पार्ट आएगा कौन सा नहीं आएगा। ओके ओके, वैभव समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay, then you guys, thank you, bye bye.